رہتا ہے۔ یہ مختصر تعریف بیداری کی ہے اور بہت ہی مختصر تشریح اس بات سے متعلق ہے کہ آدمی کی نظر بیداری میں کس طرح کام کرتی ہے۔ حضور خلد بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے لوح قلم کی ابتدائی صفحات میں یہ بات بتا دی ہے کہ انسان کے اندر لطیفہ یا خفی دراصل پوری زندگی کا ریکارڈ ہے، وہ زندگی بیداری کی ہو یا خواب کی۔ آنکھ جو منظر دیکھ کر دماغ کی اسکرین پر منتقل کرتی ہے وہ دراصل لطیفہ خفی کا ریکارڈ ہے۔ لطیفہ خفی کا ریکارڈ 15 سیکنڈ کے وقفے میں محدود ہو کر نظروں کے سامنے آتا ہے تو اس عمل کو بیداری کہا جاتا ہے۔ بیداری میں نگاہ کا تعلق آنکھ کے ڈیلوں اور پلکوں سے براہ راست ہے۔ آنکھ کے ڈیلوں کے اوپر پلکوں کی طرف انسانی کیمرے کا وہ بٹن ہے جو بار بار تصویر لیتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر آنکھ کے ڈیلوں کے اوپر پلک کی ضرورت نہ پڑے تو آنکھ کے اندر موجود اعضاء کام نہیں کرتے۔ آنکھ کے اندر موجود اعصاب کے حصے اسی وقت کام کرتی ہیں جب ان کے اوپر پلک یا آنکھ کے پردوں کی ضرورت پڑتی رہے۔ اگر آنکھ کی پلک کو باندھ دیا جائے اور ڈیلوں کی حرکت رک جائے تو نظر کے سامنے خلا آ جاتا ہے، مناظر کی فلم بندی رک جاتی ہے۔ عمل استرخاء میں کسی بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ آنکھ کے ڈیلوں کی حرکت رک جائے اور آنکھ کے پردے کی ضرورت ڈیلوں پر نہ پڑے تاکہ بیداری کی نظر خواب کی نظر میں منتقل ہو جائے۔ ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو آنکھ کے ڈیلوں پر پردے کو یا پلک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قانون یہ بنا کہ آنکھ کے ڈیلوں پر آنکھ کے پردوں یا پلک کی ضرورت سے یا آنکھ کے کھلنے اور بند ہونے سے مناظر کا دماغ کی اسکرین پر منتقل ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا لطیفہ نفسی کی پہلی حرکت ہے۔ لطیفہ نفسی کی مسلسل حرکت سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لطیفہ نفسی کی روشنیوں کو جب کسی طرف میلان کرتی ہیں لطیفہ نفسی کی روشنیاں جب کسی طرف میلان کرتی ہیں تو تمام محسوسات اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حسیات میں سب سے لطیف حس بصارت ہے، کیونکہ بصارت سب سے زیادہ لطیف حس ہے، اس لیے لطیفہ نفسی کی روشنی سے سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے۔ یہ روشنی انسان کو سب سے پہلے خیال سے روشن حاصل آتی ہے۔ پہلے جو قوت باصر حرکت کرتی ہے تو نگاہ خارج کی چیزوں کو داخل میں اور داخل کی چیزوں کو خارج میں دیکھتی ہے۔ آئینے کی مثال دی جا چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذہن انسانی ہر حالت میں آئینہ کا کام انجام دیتا ہے اور وہ انسانی اسی آئینے میں خیالات، توہمات اور تصورات کو مجسم شکل و صورت میں دیکھتی ہے۔ لطیفہ نفسی کی روشنیاں پوری کائنات کو دیکھتی ہیں اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان روشنیوں سے باہر کسی وہم، خیال یا تصور کا نکل جانا ممکن نہیں ہے۔ ساری کائنات پر یہ روشنیاں ایک دائرے کی صورت میں محیط ہیں۔ روشنیوں کے اس دائرے کو قلندر بابا اولیاء نے جویہ کا نام دیا ہے۔ جویہ سے مراد لطیفہ نفسی اور لطیفہ قلبی ہے۔ قانون یہ ہے کہ جویہ کی روشنیاں ذات انسانی کو لامتناہی حدوں تک وسیع کر دیتی ہے۔ جویہ کو متحرک کرنے اور جویہ کی تمام وسعتوں سے باخبر ہونے کے لیے میم کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔ انبیاء کی تعلیمات میں اس کوشش کا پہلا سبق دن اور رات کے اندر 21 گھنٹے 20 منٹ جاگ کر پورا کیا جاتا ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے 40 منٹ میم کے لیے کافی ہے۔ بیدار رہنے کے اس عمل کے ساتھ ساتھ یہ میم کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جانے کے بعد دوسرا سبق پلک جھپکائے بغیر تاریکی میں نظر جمانا ہے۔ قانون آپ حضرات سمجھ چکے ہیں کہ دیکھنے کا عمل ڈیلوں کے اوپر پردوں کی ضرب سے واقع ہوتا ہے۔ 21 گھنٹے 20 منٹ تک جاگنے کے عمل کو تصوف اور روحانیت کی اصطلاح میں تنویر اور تاریکی میں پلک جھپکائے بغیر اور تاریکی میں پلک جھپکائے بغیر نظر جمانے کو استرخاء کہتے ہیں۔ حضرت ویسا کرنے کے نقش قدم پر چل کر میم کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے والا سالک اپنے اندر شہود کی قوت بیدار کر دیتا ہے۔ لوح قلم کے اسباق میں اب تک جس قدر تشریح کی گئی ہے اس میں ایک بات بہت عام ہے اور وہ یہ کہ ساری کائنات اور کائنات کے اندر تمام نوعیں اور افراد ایک مرکزیت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے مختلف مراحل اور زندگی کے مختلف زمانے ظاہر کی نظروں سے الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن پھر واقع زمانے کے نشیب و فراق اور زندگی کے مراحل میں تغیر تبدل کتنا ہی کیوں نہ ہو، سب کا تعلق مرکزیت سے قائم ہے۔
बंदे और मरकजियत के दरमियान में जो वास्ता बनाता है वो लहरें या शुआएं हैं। एक तरफ मरकजियत से लहरें या शुआएं नुज़ूल करके अफराद कायनात को फीड करती हैं, ये कायनात के अफराद या मरकजियत के रिश्ते को कायम रखती है। और दूसरी तरफ फर्द के अंदर नुज़ूल होने के बाद ये लहरें ये शुआएं सऊद करती है। नुज़ूल और सऊद का ये लामुतनाही सिलसिला ही जिंदगी है। तो सर ये कि सारी कायनात में लहर ये शुआ दौड़ करती रहती है। शुआ और लहर के दौरानियों को देखते हुए जो कायनात की सूरत बनती है, इसको एक दायरे के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी पूरी कायनात एक दायरा है, और ये दायरा जब सऊदी और नुज़ूली हरकत करते हैं तो 6 बन जाते हैं। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान में फी सित्तत अय्यामिन कहा है, यानी मैंने कायनात को 6 दिन में बनाया। कायनात और अफराद कायनात के ऊपर पहले दायरे का नाम कलंदर बाबा औलिया लतीफ़ा नफ्सी रखते हैं। यानी लतीफ़ा नफ्सी एक चिराग है, एक शमा है जिसमें से रोशनी निकल रही है। चिराग की इस रोशनी है, लौ का नाम निगाह है। जाहिर है जहाँ लौ होगी रोशनी होगी, वहाँ का माहौल रोशन और मुनव्वर हो जाता है। कि चिराग की लौ, रोशनी या लहर जो कि खुद अपनी एक हैसियत रखती है, इसलिए जहाँ तक कोई रोशनी पड़ती है ये खुद का मुशाहिदा कर लेती है। चिराग की लौ में बेशुमार रंग है, जितने रंग है उतनी ही कायनात में रंगीनियां हैं। चिराग की लौ की रोशनी हल्की, मध्यम, तेज और बहुत तेज होती रहती है। जिन चीजों पर रोशनी बहुत हल्की पड़ती है उन चीजों से मुताल्लिक हमारे दिमाग में तवहुम पैदा होता है, और जिन चीजों पर लौ की रोशनी हल्की पड़ती है इन चीजों से मुताल्लिक हमारे दिमाग में ख्याल पैदा होता है, और जिन चीजों पर लौ की रोशनी तेज पड़ती है इन चीजों का हमारे ज़हन में तस्वुर बनता है, और जिन चीजों पर लौ की रोशनी बहुत तेज पड़ती है उन चीजों का मुजाहिरा हो जाता है। यानी हमारी निगाह उनको देख लेती है। हम किसी चीज को देखने के लिए 4 मराहिल से गुजरते हैं। किसी चीज को देखने और समझने के लिए इस चीज का हल्का सा वहम दिमाग के ऊपर वारिद होता है। यानी चीज से मुताल्लिक ख्वाबों में निस्बतन गहराई वाक़ होती है। वहम में जब गहराई वाक़ होती है तो ख्याल बन जाता है। जब ख्याल में गहराई पैदा होती है तो वो चीज जो निगाह के सामने इसके नफ्सो निगार ज़हन पर ज्यादा गहरे हो जाते हैं। नफ्सो निगार की इन गहराइयों का नाम तसव्वुर है, और जब ये नफ्सो निगार तसव्वुर में खद्दोखान में ज़ाहिर होने लगते हैं तो वो चीज जिसको निगाह देख रही है नजरों के सामने आ जाती है। मजीद तशरीह यूं हुई कि देखना एक सलाहियत है जो हल्की से हल्की रोशनी में काम करती है। यानी किसी चीज के हल्के से खाके को उसकी हैसियत वहम की क्यों ना हो निगाह में मुंतकिल कर देता है, ताकि मजीद 3 दर्जों में सफर करके इस चीज को खद्दोखाल शक्ल सूरत और रंग रूप में देखा जा सके। ये बेदारी में देखने का कानून है। इस दायरे में ये जिन हदों में देखने का यह अमल सादिर होता है, कलंदर बाबा औलिया ने इसका इस्तिलाही नाम जवैया रखा है। जिस तरह हमने निगाह का कानून बयान किया है इसी तरह सारे हिस्से काम करते हैं। ये हिस्से शामा सूंघने की हिस्स, समाअत सुनने की हिस्स, जायका चखने की हिस्स और लामेसा छूने की हिस्स है। जिंदगी की सारी दिलचस्पियां, जिंदगी के सारे अमाल और वाक़यात और हालात जिंदगी की कुल तरजें इसी कानून पर जारी है। लतीफ़े नफ्सी की चिराग की लौ की रोशनियां जब फैलती हैं, बिखरती हैं, यानी जब इस लौ की रोशनियों का और लौ यानी बासरा की किसी हिस्स का बार बार इरादा होता है तो दर्जा बदर्जा बाकी 4 हिस्से भी तरतीब पाती रहती है। कानून ये बना कि लतीफ़े नफ्सी की चिराग की लौ की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा मजरूम हो जाना, बिखर जाना ही 5 आवाज की तखलीक करता है। दूसरा कानून ये बना कि अगर किसी तरीके से लतीफ़े नफ्सी से वाक़ियत हासिल कर लेने के बाद इसकी रोशनियों में इजाफा कर दिया जाए तो आदमी वहम, ख्याल, तसव्वुर और किसी चीज के मुशाहिदे से बाखबर हो जाता है। और इसका तरीका यह है कि कोई एक नुक्ता मुंतखब करके बेदार रहते हुए बेदारी के तमाम आमाल व अशकाल की मौजूदगी में मुसलसल बेदारी के तमाम ज़हनी रुझानात को एक नुक्ते पर मरकूज होने का आदी कर दिया जाए। रूह हवानी के एक हिस्से लतीफ़े नफ्सी को हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया ने एक रोशन चिराग से तशबीह दी है और कायनात को एक दायरा कहा है। यानी दायरे में एक चिराग रोशन है। इस रोशन चिराग की रोशनी ही दायरों को दिखाती है।
लतीफ़ नफ़्सी की रोशनी जो दायरों को रोशन रखे हुए है, दायरे को देखने का जरिया बनती है। यानी चिराग की लौ ही दरअसल निगाह है। यूं कहा जा सकता है कि चिराग की लौ या रोशनी जब कायनात के दायरे पर पड़ती है तो कायनात रोशन और मुनव्वर हो जाती है। मतलब ये हुआ कि चिराग की लौ कायनात को देख रही है, और जहां जहां और जिस जिस मुनासबत पर फासले से दूर या करीब से ये रोशनी मुनक़स होती है, इसी मुनासबत से निगाह में तनव्वुर पैदा होता है। इन चीजों के ऊपर चिराग की रोशनी बहुत हल्की पड़ती है। इन चीजों से मुताल्लिक हमारे जहन में एक वहम पैदा होता है, यानी चीज से मुताल्लिक एक हल्का खाका जो जहन महसूस तो करता है लेकिन शऊर इसका दिमाग कबूल नहीं करता। ये बहुत हल्की रोशनी जब हल्की होती है तो ये वहम या किसी चीज का बहुत हल्का खाका गहरा हो जाता है, और खाके की इस गहराई का नाम ख्याल है। फिर इस ख्याल में भी गहराई पैदा होती है। ख्याल में गहराई पैदा होने का मतलब ये है कि लौ की रोशनी तेज हो जाती है। जहाँ रोशनी तेज हो जाती है, ये इस दायरे में रोशनी करीब तरीन होती है, तो दायरे के अंदर यानी कायनाती दायरे के अंदर जो चीजें मौजूद है, इन चीजों का तसव्वुर ज़हन पर वारिद होने लगता है। तसव्वुर का मतलब यह है कि किसी चीज का नक्श दिमागी स्क्रीन पर इस तरह उभर आए कि दिमाग इसका वजन महसूस करे और दिमाग उसके खतखाल का खाका देखने लगे। और जिन चीजों पर इस तरह उभर आए कि दिमाग इसका वजन महसूस करे और दिमाग उसके खतखाल का खाका देखने लगे। और जिन चीजों पर चिराग की रोशनी बहुत तेज पड़ती है तो वो चीजें तसव्वुर से गुजरकर मजहर बन जाती है। इसमें बहुत ही गौरतलब बात है कि कोई चीज जो हम देख रहे हैं वो आंख नहीं देख रही, बल्कि रोशनी आंख बन जाती है, रोशनी बिसारत बन जाती है, रोशनी निगाह बन जाती है, और रोशनी निगाह बनने के बाद दूर और करीब से अपना मुजाहरा करती है। तो इस दूरी या क़रबत की बुनियाद पर किसी चीज के बारे में या किसी चीज को देखने से पहले 4 दर्जा बंदियां होती हैं। किसी चीज को निगाह के साथ देखना उस वक्त मुमकिन है जब लतीफ़ नफ़्सी की रोशनी पहले बहुत दूर हो, बहुत दूर से मुराद बहुत हल्की हो, फिर कम हल्की हो, फिर तेज हो और फिर बहुत तेज हो। जहाँ लतीफ़ नफ़्सी की रोशनी बहुत हल्की है उसका नाम वहम है, जहाँ लतीफ़ नफ़्सी की रोशनी हल्की है उसका नाम ख्याल है, और जहाँ नफ़्सी की रोशनी तेज है उसको कलम तसव्वुर कहते हैं, और जहाँ रोशनी बहुत तेज पड़ती है वो निगाह के लिए मदद बन जाती है। ये देखने का एक कानून है। अब इस कानून पर अमल दरामद करने के लिए और कानून से वाक़िफ़ियत हासिल करने के लिए बहुत सारी मशक़ें हैं, जिनमें एक मशक़ इस तरह है।